जय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल 22 तक हुआ है ना जी। स्टार्ट करें क्या हम लोग? जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो 23rd पढ़ो आप। जी। स वा अयम यत् पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मात ऋष्वनः पश्यन्ति भक्त्यु भक्त्युत कलितामलात्मना नन्वेश सत्वं परिमाष्टु महर्ति। Translation. Here is the same Supreme Personality of Godhead whose transcendental form is experienced by the great devotees who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional services and full control of life and the senses. And that is the only way to purify existence. As it is stated in Bhagavad Gita, the Lord can be known in his real nature by dint of pure devotional service only. So it is stated here that only the great devotees of Lord who are able to clear the mind of all material dust by rigid devotional services can experience the Lord as he is. Jitendriya means one who has full control over the senses. The senses are active parts of the body and their activities cannot be stopped. The artificial means of the yogic process to make the senses inactive has proved to be abject failure. Even in the case of great yogis like Vishwamitra Muni, Vishwamitra Muni controlled the senses by yogic trance. But when he happened to meet Menaka, a heavenly society woman, he became a victim of sex and the artificial way of controlling the senses failed. But in the case of a pure devotee, the senses are not at all artificially stopped from doing anything, but they are given different good engagement. When the senses are engaged in more attractive activities, there is no chance of their being attracted by any inferior engagement. In the Bhagavad Gita, it is said that the senses can be controlled only by better engagement. Devotional service necessitates purifying the senses or engaging them in activities of devotional service. Devotional service is not inaction. Anything done in the service of the Lord become at once purified of its material nature. The material conception is due to the ignorance only. There is nothing beyond Vasudev. The Vasudev conception gradually develops in the heart of the learned after a prolonged acceleration of the receptive organs. But the process ends in the knowledge of accepting Vasudev as all in all. In the case of devotional service, this very same method is accepted from the very beginning, and by the grace of the Lord, all factual knowledge becomes revealed in the heart of a devotee due to dictation by the Lord from within. Therefore, controlling the senses by devotional service is the only and easiest means.
जी जी, इसमें इन्होंने जो है हाँ 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 हाँ। कि जो प्रोसेस है, जो एक्चुअल चीज है, उसको इन्होंने एकदम इजीली बता दिया है कि here is the same supreme personality of Godhead whose transcendental form is experienced by the great devotees who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service। मतलब ये इन्होंने ये बताया कि हम लोगों को जो इंद्रियां दी गई हैं, मन दिया गया है, बुद्धि दिया गया है, उसमें किसी भी प्रोसेस को, जो नेचुरल प्रोसेस है, उसको रोकना नहीं है। बस उसको हमें अपनी कॉन्शियसनेस को मटेरियलिस्टिक चीजों से हटा के गॉड की तरफ शिफ्ट करना है, सिंपल। और उन्होंने बताया कि जब हम, जैसे अभी तक हम जो करते आए हैं, तो हमारा मन उसी चीज को करने के लिए करता है। मतलब जो भी सेंसेस का हमने यूज किया या जिन चीजों का यूज किया, तो वैसे ही ये बता रहे हैं कि जब आप कुछ समय तक रिजिड डिवोशनल सर्विसेज करेंगे, तो आपका नेचुरल बेंट गॉड की तरफ हो जाएगा। और बल्कि जी जी, हमको तो ये लगता है कि अगर हम ये देखें कि संसार की चीजें और भगवान की चीजें, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है, तो जब हम परमात्मा की तरफ समझ के चलने की कोशिश करेंगे, तो हमारा बेंट बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत डीप हो जाएगा, क्योंकि हम एक्चुअल में वही हैं। भाई, तो जैसे ये जो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप विविध डिवोशनल सर्विसेज करेंगे, वैसे वैसे आपका बेंट जो है, आपकी कॉन्शियसनेस जो है, वो गॉड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और ये जी इन्होंने एक चीज ये बताया है कि यहाँ पे जो आपकी सेंसेस है या जो और भी चीज है, उनको आर्टिफिशियल तरीके से आप जो है सप्रेस करने की कोशिश मत करिए, बल्कि वो चीज जो नेचुरल वे में जा रही है, बस आपको उसका केवल डायरेक्शन चेंज करना है। तो तुमने तो बिल्कुल कर मैं उसको जो प्रभुपाद जी ने प्रोसेस बताई है उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है जी ना। जी जी, ये बिल्कुल आप, बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी जी और जी। वो, अगर आप प्योरली श्लोक को भी देखें तो दो दो बड़े की वर्ड्स हैं। एक तो है जी। जितेंद्रिय, हम्म। है ना। हम्म। जितेंद्रिय वर्ड को पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया जो तुमने आत्मसात करके बताया है। जी और जी जी। दूसरी है क्या नाम है, भक्त्युत कलात्मना के लिए, जो जो भक्ति के बारे में, भक्ति, पहले मैं थोड़ा कर रहा था, लेकिन जो यहाँ पर भक्त्या की वो जो यूज किया ना, जी। बाय डिंट ऑफ डिवोशनल सर्विस, क्रम है हम्म। ये करा, भक्ति बाय डिंट ऑफ डिवोशनल उत्कलिता डेवलप्ड, उत्कलता हम्म। जो जो डेवलप हो, जो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, जी। एक चीज मैं इस पे अभी तुम्हारे साथ ही जब तुम पूरा बता रही थी और विचार, सी ये है प्रोसेस बड़ी जो गोपियों ने करके दिखाई है। कल मैं सुन रहा था ना, जी। उसी उसी क्या नाम है, चतुर्श्लोकी गीता के उसमें एक हम्म। एग्जाम्पल दे रहे थे। हम्म। वो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल था। सी गोपियां जो थी ना, हम्म। वो बड़ा यार, उसको उन्होंने उस आर्ट को बड़ा परफेक्ट कर दिया था। वो हम्म। क्या कर रही थी हम्म। कि जैसे सपोज करिए वो दूध मथ रही, मतलब ये वैदिक टाइम की लेडीज हैं हम्म। हम्म। जो दूध मथ रही हैं, या क्या नाम है, दही का बिलो रही है, या धान कूट रही हैं। अब वो ये काम कर रही है, दैनिक क्रियाएं कर रही हैं अपनी, हम्म। लेकिन वो भगवान के क्रम है, या उनका मतलब उनकी क्रम गाने की फॉर्म में उनको कर रही हैं, चाहे उनके बारे में सोच रही है कि भाई जी। वो कान्हा गए हुए हैं वहां पे हम्म। वृंदावन के जंगल में गाय चराने, तो उनका क्या हो रहा होगा, या मतलब वो इसी उनका दिमाग जो है जो उनका ना मन बुद्धि और दो दो तीन चीजें जो उन्होंने यूज की हैं, जी। वो भगवान में ही लगा हुआ था। हम्म। और उनका केवल फिजिकल जो सेंसेस थे वो इस हम्म। काम में लगे हुए थे, हम्म। लेकिन वो पूरी तरह से उसमें लगी हुई थी। यही हमको, मतलब आई थिंक दिस इज द इजिएस्ट वे। और क्योंकि ये बिल्कुल क्लियरली भीष्म देव ने भी कहा कि गोपियों की जो भक्ति थी वो द अल्टीमेट है। और ये हम्म। हम लोग देख भी रहे हैं। देखिए आप, हम लोग क्या करते हैं कि ना, मैं जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आदमी कार से जा रहा है, मतलब हम लोग हम्म। जब सर्विस में थे, चलो कि मैं ड्राइवर आपको लेके जा रहा है, 1 घंटे आपको लग रहा है ऑफिस पहुंचने में, तो आप क्या कर रहे थे, आप जो है ना, या तो उल्टी सीधी चीजें कर में पढ़ के अपना दिमाग खराब कर रहे थे, या अपने कान में लगा करके, या जैसे भी है, आप उल्टी सीधी चीजें सुन रहे थे, अखबार बिल्कुल। न्यूज में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। अभी हम्म। आप उस काम को, क्या नाम है, गोपियों से लर्न करके आप उसको कृष्णाइज कर सकते हैं। और बिल्कुल। आप अगर देख रही होंगी, क्या नाम है, कि जैसे जैसे आप ये करेंगी, तो ये मतलब ये हम लोग थोड़ा सा ज्ञान योग करेंगे अगर, क्या नाम है, हम्म। तो फिर हमको क्या नाम है,
फिर इसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। जी इसके अंदर में सेंसेस को अभी क्या कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं तो ये सोच रहे हैं यार आज ये इतनी अच्छी सब्जी बना रहे हैं, तो फिर ये क्या नाम है, हमको तो बड़ा अच्छा मिलेगा स्वाद एंड ऑल दैट, और हम्म। हमारे मटेरियल सेंसेस सेटिस्फाई होंगे। ऐसे जी आप भगवान के बारे में सोचती रही तो खाना भी आपका अच्छा बन जाएगा। और हाँ मतलब ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप अगर उनका भोग लगा के खाते हैं, अगर आप शुद्ध खाना बना के उनका भोग लगा के, चाहे मैं कहता हूं कि मनी मन में भी अगर आप उनका भोग लगा दें वो भी बिल्कुल। काफी हम्म है ना। यू हम्म बिगिन विद दैट, हम्म मतलब यू बिगिन विद दैट, ऑल्दो देर इज हम्म नॉट मच बिग डिफिकल्टी का नाम है। आप मन ही मन सोचना शुरू कर दें कि भाई भगवान के लिए का नाम है ना, तो वो हम्म चीज जो है बड़ा, हाउ टू डाइवर्ट सेंसेस टुवर्ड थिंकिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, हम्म ये जो तुमने कहा है ना, ये हम्म। प्रोसेस भी इसके अंदर में पूरा बताई हुई जी है उन्होंने। पूरा बताई हुई है। जो तुमने बिल्कुल। कहा ना मन बुद्धि और जो तुमने कहा ना अपने सेंसेस को जी उस तरफ वो सब बता ही दिया उन्होंने, तुमने उसको बता दिया। जी जी जी। इसमें एक चीज हम और भी बताएं आपको, गोपियों वाली बात हम कैसे समझ पाए हैं। ये हाँ हाँ जैसे बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हम अपनी लाइफ में जिसको भी बहुत प्यार करते हैं, मान लीजिए हम अपनी मदर को बहुत प्यार करते हैं, करेक्ट, ओके। है ना। तो यही जानते हैं जब हम अपनी मदर को प्यार करते हैं तो हम अपना सारा काम करते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लिखाई भी करते हैं, लेकिन वो एक अंदर से फील रहता है कि मेरी माँ है, मुझे बहुत प्यार करती है ना जी जी। तो वो बैकएंड में वो स्मृति हमेशा रहती है। तो जी एक बार मेरे गुरु ने बताया था, हमने उनसे पूछा था कि गुरु जी ये बताइए, तब मैं भी ये एकदम इनिशियल स्टेज पे थी, तो हमने कहा ये बताइए हम भगवान की पूजा क्यों करें। हमने उनसे करेक्ट, ये यस। क्वेश्चन किया हाँ था। हाँ, वेरी गुड ये क्वेश्चन, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा ये बताओ तुम अपनी माँ को प्यार करती हो। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बेटा इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना गॉड प्यार करते हैं। और जब इस अच्छा, रास्ते पे करोड़ धीरे कहा धीरे, था उन्होंने, करोड़। हाँ, उन्होंने कहा जब इसको इस करोड़ों रास्ते से पे धीरे मल्टीप्लाई धीरे कर दो। बढ़ोगी तब समझ में आएगा। तो जीजा जी मैं ये समझ सकती बाय हूँ। गॉड करें मैं, यस। तुम लोगों का तो काफी पहले कदम है, तुम लोगों ने तो जी इस मैं ये समझ सकती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि जैसे माँ के बिना जब हम नहीं रह पाते हैं, तो आप ये सोचिए जो परम पिता परमेश्वर हैं, जब हम भक्ति करते हुए उनके रास्ते पे चलेंगे और अपनी अंतरात्मा से जब उनको अनुभव करेंगे, तो वो जो अंदर से वो जो प्राप्त करने की चाहत होती है वो कितनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अरे वो भैया, तो है। जी अभी जी भाई जी तुम लोगों ने तो बड़ा क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहता हूँ। जी यही जी बात जो है ना, वो एग्जाम्पल जब उसको याद करो ना जी आप अपनी माँ को भी नहीं आपको छोड़ने की जरूरत है भगवान के लिए। एक्चुअली बिल्कुल। भगवान के जड़ में अगर आप पानी डालोगे ना भक्ति में, डिवोशनल सर्विस में, तो आप जी माँ से भी, ओनली वे टू कनेक्ट टू योर मदर ऑल्सो इज थ्रू दैट ओनली। बिकॉज हाँ अगर भगवान की सर्विस करेंगे तो जी आपके डिपार्टेड पेरेंट्स की सर्विस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो हाँ उनका श्राद्ध वगैरह करने से भी कहीं ज्यादा आप कर चुके होंगे ऑलरेडी। जी You see, you will not only serve your parents, but anybody whom you think that you love in this material world. हम्म जी, मतलब जी जो भी आपके किथ एंड किन है, अपने बच्चे हैं आपके, जी मतलब परिवार में जो भी लोग हैं जिनको आप क्या नाम है, मतलब तो दे विल ऑल्सो बी सर्व। यस ये तो आपको मदर का लव आपके लिए फिर और वो भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जी जी बिल्कुल जी ये भी ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर जी में। प्रभुपाद ने तो एटलीस्ट लिखा ही हुआ है, क्या नाम है, हम्म मतलब है ना। तो ये बहुत अच्छा तुमने, और ये बड़ा ये वाला जो श्लोक है प्लस परपोर्ट, जी इट क्लैरिफाइज एवरीथिंग। हियर जी इज द सेम। और ये देखो कि वो मथुरा की लेडीज छत पे ये डिस्कस करके बता हाँ रही हैं एक दूसरे को। बताइए। हियर इज द सेम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड whose हम्म transcendental form is experienced by the great devotees who are completely cleansed of material consciousness। हम्म जितेंद्री हो गई है, क्या नाम है ना, जी जी बाई डिंट ऑफ रिजिड डिवोशनल। अब यहाँ पे रिजिड डिवोशनल सर्विस है ना, ये थोड़ा हम्म सा आदमी को घबराता है इससे कि यार रिजिड क्या चक्कर है? लेकिन ऐसा रिजिड में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल चीज है वैसे। जानते हैं ये यहाँ पे रिजिट का सिंपल मतलब है कि अभी तक हम सारे सेंसेस की काम करते चले आए हैं, तो हमारे पास लेयर्स उसके इंप्रेशन की है। तो यही जब हम रिजिट का हाँ यही हाँ रेगुलर वे, और एक जैसे जी जी हम अगर भी आईएएस की तैयारी कर रहे हो
तो हम 24 घंटे में से यदि 14-15 यस। घंटे पढ़ते हैं तो बस रिजिट का ये मतलब है, क्योंकि हमें आईएएस का एम, अब जी आपको जितनी जल्दी प्राप्त करना है उतनी जल्दी आप मेहनत करिए, सिंपल। यस यस यस। क्या नाम है, रिजिड डिवोशनल सर्विस एंड फुल कंट्रोल ऑफ लाइफ एंड द सेंसेस, जी है ना। डिवोशनल सर्विस करोगी तो ऑलरेडी क्या नाम है, जैसा गोपियां करती थी, तो आपका तो सेंसेस कंट्रोल करने का वो तो डाइवर्टेड हो जाएगा भगवान की तरफ। बिल्कुल खत्म बात, है ना। बिल्कुल। आप उल्टी सीधी चीजें सोचने के लिए टाइम ही नहीं लगेगा, टाइम कौन नहीं सी मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी आ गई और जी कौन सा क्या हो गया, आपको क्या जी लेना देना, मतलब यू सी इट विल स्टार्ट हैपनिंग। हालांकि बिल्कुल। ये जो ना, ये जो सोशल मीडिया मीडिया को भी भोग करने की प्रवृत्ति, ये मतलब, लेकिन क्या नाम है, अगर आप थोड़ा सा जैसे क्या नाम है, अगर आप फोर्स करेंगे, जैसे वरुण कहते हैं कि फोर्स, कि आप भगवान की तरफ इन सब चीजों से हटा करके उस तरफ ले जाने का करेंगे, यहीं पर रिजिड का मतलब इस सेंस में आता है। सिंपल। धीरे धीरे करके ये ऑटोमेटिक जी होना शुरू हो जाएगा। जी। बस हाँ, भाई वेरी ये भी ब्यूटीफुल, ये यस। वही सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो मान लीजिए हम 7-8 आवर्स पढ़ रहे थे। ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद हमारे सामने एम आया कि अब हमको आईएएस क्लियर करना है। तो जी यदि हम जो है वो 7-8 घंटे की जगह 14 से 16 घंटे पढ़ने लगे, तो जी जिस हिसाब से हम अपने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, उसी हिसाब से हमारी चीजें जो है ट्रांसफॉर्म होती चली जाएंगी। तो रिजिट का मतलब है मोर अटेंशन एंड मोर एफर्ट, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू गॉट इट क्रम है। और जी मेरे ख्याल में तो ऐसा लगता है कि जी अब भाई तुम लोग अपने सर्विस में भी हो, और क्या जी नाम है, हम वो है, तो आपको भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं टू अर्न जी योर लाइवलीहुड, तो जी आपका दिमाग खाली नहीं मिलता है। जी मतलब कि बीच बीच में तो ऐसे पीरियड्स आते हैं जब यू हैव योर माइंड इज क्या नाम है, स्टार्ट्स वॉन्डरिंग। तो बिल्कुल। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि क्या नाम है, मतलब आई आई लेट मी थिंक ऑफ, कि कुछ नहीं है तो जो हमने सुबह भागवतम की क्लास अटेंड की थी, उसमें क्या जी कहा गया था, क्या या क्या है भागवतम बिल्कुल। के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, नारद मुनि के पिछले जन्म की कथा को याद करना शुरू कर देंगे आप। ऑल दैट हाँ इज क्या मैं मतलब डिवोशनल सर्विस ओनली। जी when बिल्कुल। when you start thinking of the devotee of the supreme lord, that also is devotional thinking। जी तो जी या किसी श्लोका पे ही, जैसे चतुर्श्लोकी गीता, या जो आप, इट डजेंट मैटर कि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट भी है, तो भी अगर हाँ आप उसके ऊपर मनन करने लग जाएं, तो दैट इज बिल्कुल ऑल्सो डिवोशनल सर्विस। इट बिल्कुल। डजेंट मैटर कि क्या हाँ नाम है। भाई देखो ना, क्या नाम है, मतलब आपके गुरु जी ने क्या नाम है, अगर कोई ढंग का मतलब गुरु है, तो हाँ, गलत बात बता ही नहीं सकता है। ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है, जो चीज वो बता रहे थे, मुझे आई एम वेरी हैप्पी टू नोट कि जो वो बता रहे थे, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं बिल्कुल जी। भी फर्क नहीं है। हाँ वो भी जो बता रहे थे और जो जी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। दैट इज वाई यू आर नॉट सो मच कन्फ्लिक्टेड, यू नो। जी जबकि और लोगों के साथ में, जी और लोगों का थोड़ा सा ट्रबल ये है कि मतलब बचपन से ही उन्होंने इतना, मतलब ये जो जो किया हुआ है ना, मतलब जी जो प्रैक्टिसेस, जी जी जी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते रहे ना, हाँ उससे हाँ उनके लिए क्या नाम है, इस कंसेप्ट को समझना हाँ थोड़ा हाँ सा उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो बट इट विल हैपन, क्योंकि वो आते जा रहे हैं ना, उनके जी ऊपर भी कृपा हो रही है, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव अटेंडेड डिस्पाइट हाँ क्या नाम है एनीथिंग। हाँ ये फैक्ट है। जी तो वेरी नाइसली हाँ एक्सप्लेन्ड बाय यू। तो हाँ टेक्स्ट 24 कौन पढ़ेगा, मैं हाँ, पढ़ूं या जी रूपा तुम पढ़ोगी? जीजा जी अभी ये पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अभी इसको खोल नहीं पाई हूँ। मैं वही पूछ ही रही थी टेक्स्ट के थ्रू कि विच वर्स वी आर रीडिंग। 24 आप इसको पढ़िए, मैं 24 वन 25 पॉइंट, मतलब कैंटो 1 चैप्टर 10, कैंटो 1 चैप्टर 10 टेक्स्ट 24। 24 1 10 24। जैसे ही कि चैप्टर 10 खोलोगी ना, तो उसमें वर्स वाइज आता है, तो यू नो इट। जी मैं पढ़ दूं। चलो पढ़ दो, तुम दोबारा पढ़ दो, ओके, जी तब तक वो जी खोल रही हैं। तब जी तक तुम 25 देखना है। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ। सा वा अयम सख्युनु गीत सत्कथो वेदोषु वेदेषु गुह्यश्चु गुह्योषु च गुहा वादिभिः
या एक ईशो जगदाम्य लीलया सृजत्य वत्यति तत्र सज्जते. Translation. Oh dear friends, here is that very personality of Godhead whose attractive and confidential pastime are described in the confidential part of Vedic literature by his great devotees. It is he only who creates, maintains, and annihilates the material world and yet remains unaffected. As it is stated in the Bhagavad Gita, all the Vedic literature are glorifying the greatness of the Lord Sri Krishna. Here it is confirmed in the Bhagavad Gita, Bhagavatam also. The Vedas are expanded by many branches and sub branches by great devotees and empowered incarnations of the Lord like Vyas, Narad, Sukdev, Goswami, the Kumaras, Kapila, Prahlad, Janak, Bali, and Yamraj. But in Srimad Bhagavatam, especially the confidential parts of his activities are described by the confidential devotees Sukdev Goswami. In the Vedanta Sutras or Upanishad, there is only a hint of the confidential part of his pastime. In such Vedic literature as the Upanishad, the Lord has expressively been distinguished from the mundane conception of his existence. His identity being fully spiritual, his form, name, quality, and paraphernalia, etc., have been elaborately distinguished from the matter, and therefore he is sometimes misunderstood by less intelligent personnel as impersonal. But factually, he is the supreme person, Bhagwan, and he is partially represented as Paramatma or impersonal Brahman. अब अगर आप देखो ना इस श्लोक में फिर से मतलब आई एम इम्प्रेस्ड बाय दीज लेडीज कि वो उनको पता चल गया है कि ये वही वो है जो कि शास्त्रों में जिनकी लीलाओं का वर्णन है, और है ना, ये लेडीज को पता कि ये वही है। मतलब इनको ऑर्डिनरी आदमी मत समझो कि हाँ भाई ये कोई वीर पुरुष है या कोई कर्म है सिद्धि पुरुष है, कर्म ऐसा नहीं है। ये जो है ट्रांसीडेंटल, ये सुप्रीम लॉर्ड ही है। प्लस प्रभुपाद जी ने यहाँ पर पूरा अच्छे से बता दिया है कि भाई मतलब बाकियों में भी उनके बारे में हिंट है, उतना वो नहीं है, लेकिन जो भागवतम में उनके जो कॉन्फिडेंशियल पार्ट्स ऑफ की लीलाएं जो है वो पूरी की पूरी बता दी है। वो आप देखोगे भी, चाहे वो अब देख लो आप नारद मुनि के इंस्टेंस में भी वो दिखा दिया कि भगवान किस तरह आए उनके पास, चाहे वो आए चाहे उनके अंशावतार देखा उन्होंने, नारायण को देखा, जिसको भी देखा है ना। और उसके बाद में वो सारी लीलाएं उन्हीं की है। उसके बाद आप देखो भीष्म देव को भी ये रियलाइजेशन हुआ था, है ना, वो उन्होंने शेयर किया युधिष्ठिर से, है ना। इसी तरह से आप आगे देखोगे प्रहलाद महाराज को होगा क्रम है, जब हिरण्यकश्यपु आएंगे एक, अरे वो क्रम है आएंगे, मतलब नरसिंह देव आएंगे, है ना, वैसे ही वामन अवतार क्रम आएगा। तो ये जैसे जैसे आप भागवतम पढ़ेंगे तो ये सारी उनकी लीलाएं हैं। एंड देन यू विल कंटिन्यू टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। ये जो है बड़ा मतलब ये उन्होंने बताया है प्रभुपाद जी ने, प्लस लेडीज ने भी by his great devotees. It is he only creates, maintains and annihilates the material one yet remains unaffected. उनके अंदर में मतलब यही है कि ना जस्ट लाइक कंडीशनड सोल्स तो अफेक्टेड होती हैं, वो तो जैसे ही इस वर्ल्ड में आती हैं दे आर अफेक्टेड बाय मटेरियल नेचर। जो प्रकृति के सत्व रजस और तमोगुण में वो उनका अटैक होता ही है। केवल ये है कि जो रियलाइज सोल है वो इस बात को समझ करके उससे भ्रमित नहीं होते हैं, है ना। वो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करते करते और ये इस टाइप का मतलब भगवान की भक्ति करते करते, भक्ति है ना, तो उससे आपको कर्म है ये होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये। दिस मतलब जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है ना व्यासदेव जी ने, इसमें बहुत अच्छा है अबाउट द मथुरा सिटी लेडीज। चलो भाई, आपका हैव यू बीन टू रीच रूपा? हाँ, जी जी, टेक्स्ट 25 जी। यदा हे अधर्मेण
तमो धियो नृपः जीवन्ति तत्रैष हि सतत्वा किल धृते भगम सत्यमृतम दंशाम यशो भावाय रूपाणि दध दुगे युगे. Translation. Whenever there are kings and administrators living like animals in the lowest modes of existence, the Lord in his transcendental form manifests his supreme power. The truth positive shows especially mercy to the faithful, performs wonderful activities, and manifests various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. But as mentioned above, the cosmic creation is the property of the Supreme Lord. This is the basic philosophy of Isho Upanishad. Everything is the property of the Supreme Being. No one should encroach upon the property of the Supreme Lord. One should accept only what is kindly awarded by him. Therefore, the earth or any other planet or universe is the absolute property of the Lord. The living beings are certainly his part and parcels or sons, and thus every one of them has a right to live at the mercy of the Lord to execute his prescribed work. No one therefore can encroach upon the right of other individual man or animal without being so sanctioned by the Lord. The king or the administrator is the representative of the Lord to look after the management of the Lord's will. He must therefore be recognized person like Maharaja Yudhishthir or Parikshit. Such kings have full responsibility and knowledge from authorities about the administration of the world. But at times, due to the influence of the ignorance mode of the material nature, Tamoguna, the lowest of the material modes, kings and the administrator came into power without knowledge and responsibility, and such foolish administrators live like animals for the sake of their own personal interest. The result that the whole atmosphere becomes surcharged with anarchy and the vicious elements. Nepotism, bribery, cheating, aggression, and therefore famine, epidemic, war, and similar other disturbing features become prominent in the human society, and the devotee of the Lord or the faithful are prosecuted by all means. All these symptoms indicate the time of an incarnation of the Lord to re-establish the principle of religion and to vanish the maladministrators. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. The Lord then appears in his transcendental form without any tinge of material qualities. He descends just to keep the state of his creation in a normal condition. The normal condition is that the Lord has provided each and every planet with all the needs of the native living being. They can happily live, execute their predestined occupations to destined occupations to attain salvation at the end, following the rules and the regulation mentioned in the revealed scriptures. The material world is created to satisfy the whims of the Nityabadha or everlasting conditioned soul, just as naughty boys are provided with playing cradles. Otherwise, there was no need of material world. But when they become intoxicated with the power of material science to exploit the resources unlawfully without the sanction of the Lord, and also only for the sense gratification, there is necessity of the Lord's incarnation to chastise the rebellious and to protect the faithful. When he transcends, he exhibits superhuman acts just to prove his supreme right. The materialists like Ravana, Hiranyakashipu, and Kansa are sufficiently punished. He acts in a manner which no one can imitate. For example, the Lord, when he appeared as Rama, bridged the Indian Ocean. When he appeared as Krishna, from his very childhood, he showed superhuman activities by killing Putna, Aghasura, and Sakatasura, Kalia, etc. And then his
maternal uncle Kanj. When he was at Dwarka, he married 16,108 queens, and all of them were blessed with a sufficient number of children. The sum total of his personal family members amounted to about 1 lakh, popularly known as the Yaduvansha. And again, during his lifetime, he managed to vanquish all of them. He is famous as the Govardhanadhari Hari, because he lifted at the age of only 7 the hill known as Govardhana. The Lord killed many undesirable kings in his time, and as Kshatriya he fought chivalrously. He is famous as Asamudhva, unparalleled. No one is equal to or higher than him. ये तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई है। यस, पास्ट के सारे श्लोकास से और इससे। अब मैं आपको जो मेरे को मतलब बिल्कुल पूरा का पूरा ये जो है, हमने जो 2 श्लोक अभी पढ़े हैं ना, पहला वाला जो पढ़ा है ना चतुर्श्लोकी गीता का, अहम सर्वस्य प्रभु मत्र सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सब चीजों की उत्पत्ति का कारण हूं। अच्छा, अगर जो लोग इसको नहीं मानते उनमें भोक्तृत्व का भाव आता है, तो ये सारे राजा और ये सब जो है ना, ये इसी में लग पड़े कि यार इसको एक्सप्लॉइट करो। तो फिर कर्म है, मतलब उन्होंने भगवान को मानना बंद कर दिया, है ना। और दूसरा आया है उसमें मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं सभी चीजों का संचालक हूं। और जब लोगों ने भगवान को संचालक मानना बंद कर दिया तो कर्तृत्व का भाव आया, कर्म है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हमने पैदा किया है, कर्तृत्व का भाव आया, वो भगवान को मानना बंद कर दिया उन्होंने, है ना। तो उसका नतीजा क्या हुआ, भगवत गीता में बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, ग्लानिर्भवति भारत हाँ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, ये जब अधर्म से हो रहा है ये सारा, है ना, जब भगवान को आपने मानना बंद कर दिया, जो ये सारे व्याभिचारी हो गए और भ्रष्टाचारी हो गए, तो फिर तदात्मतम सृजा में हम, और मैं किस लिए आता हूँ, क्या नाम है वो, जब उन्होंने वही वाला जो सेकंड वाला, परित्राणाय साधूनाम, ये प्रभुपाद जी ने वो बता तो दिया यहाँ पे कि भगवत गीता में ये कंफर्म किया है, यही श्लोक में वो भगवान ने खुद ही कह दिया है। और अभी जैसे जैसे हम लोग इवन भगवत गीता और भागवतम पढ़ेंगे ना, कहीं पर कोई कंट्रडिक्शन नहीं मिलेगा, सब कुछ क्या नाम है, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएगा, यू नो। जी, मैंने एक चीज और महसूस की है, ये जब कभी भी हम लोगों को चीजें कन्फ्लिक्टिंग लगती है ना, तो इसका मतलब मैंने ये एनालाइज किया है जीजा जी, कि जैसे मान लीजिए किसी चीज को समझने के डिफरेंट प्लेन्स हैं, प्लेन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक। अब मान लीजिए कोई बहुत हायर स्टैंडर्ड चीज प्लेन 5 की है, और उसको अगर हम प्लेन 1 पे इंटरप्रेट करते हैं जिया जी, तब कन्फ्लिक्ट आते हैं। जिस लेवल की चीजें जब आप उसी लेवल पे जाके समझते हैं जिया जी, तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। भगवान जो बात कह रहे होते हैं वो हायर मोड की होती है, और हमारा मोड अभी उतना हायर है नहीं, इसलिए हमको जिया जी वो कन्फ्लिक्टिंग लगती है। जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तब कन्फ्लिक्टिंग नहीं लगेगी। बिल्कुल सही बात। इसीलिए चतुर्श्लोकी गीता में जो कहा इति मत्वा, मानने का बड़ा मतलब है, यू सी, जानने से नहीं काम चलेगा, मानना जो है ना आपको, मतलब जो काम गोपियों ने करके दिखाया, यू सी, गोपियां जो थी वो हृदय से ही उन्हीं में लगी रहती थी, बस यही चीज जो है, मतलब ये बड़ी की है, और ये हो रही है, भगवान की कृपा होगी तो ये मतलब बिल्कुल हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे प्रसंग शेयर करूंगी। हाँ, यस यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस प्लीज। 2000 आई थिंक 17 में, मैं नहीं 7 में, सॉरी, मैं इधर थी मथुरा साइड। तो मतलब एक हम लोग चूंकि यूपी के हैं उधर के, तो यहाँ जब हम आए बाराबंकी से इधर, हाँ, अपना MBA करने के बाद वेस्ट में, हम तो हाँ आ गए, मतलब मथुरा इस ना बिल्कुल पैरेलल वर्ड है कृष्णा।
तो हम यहाँ बड़े मतलब उत्सुक थे कि अरे यहाँ मंदिर जाएंगे, यहाँ सबके लोगों को देखेंगे, ये सारी चीजें मतलब एकदम लार टपकती थी मेरी कि अच्छा ये हाँ देखने को हाँ मिलेगा, हाँ अच्छा हाँ वहां हाँ जाएंगे। हाँ जब हाँ यहाँ पर आए हमने मतलब थोड़ा घूमे घामे, हमारा रिलायंस में एक कोवर्कर था, उसके साथ, उसका घर है यहाँ पे नेटिव, हाँ हाँ हाँ। वो हमें ले भी गए घुमाने के लिए। तो हमको ना बड़ी थोड़ी सी निराशा हुई स्टार्टिंग में, जब मंदिर गए, अच्छा जन्मभूमि गए, अच्छा तो हमको अच्छा। लगा नहीं नहीं यहाँ तो भाई हमको वो चीज बिल्कुल समझ, वही है सब कुछ, हाँ ये सब जैसा। वो ऐसे माया में ही लिप्त लोग लग रहे हैं। इनफैक्ट वो करेक्ट। मंदिर के पुजारियों में भी वही से लिप्त सा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो थोड़े निराशा से हुए, मेरी आदत है अपने प्रश्न भी मेरे उतने, और फिर हमने भगवान से कहा, हमने कहा बिल्कुल, भगवान यस। जी ये तो कुछ है नहीं यहाँ पे, क्या है ये, बड़ा दुख हुआ हमको। फिर हमने कहा नहीं, जब कहा है उन्होंने तो फिर वृंदावन इज स्पेशल। और हम बड़े दुखी मन से वापस आ गए। तो हम नोएडा रहते थे, हम एक बार फिर आए, और तब भी मेरे मन में यही था कि क्या अभी भी हमको यही देखने को मिलेगा, थोड़ा चाइल्डिश ब्रेन था मेरा। और उस बार हम उस को वर्कर के यहाँ रुके, और हमने उसके घर में कुछ चीजें ऐसी देखी जो बिल्कुल ये जो गोपियां बात कर रही है ना, ही हिमसेल्फ वॉज लाइक, मैं दो तीन बातें मतलब या उनके बारे में बताती हूँ। वो बाई कास्ट जाट था, वो मतलब इतना सिंपल माइंडेड मैन, इतना डिवोटी, मतलब 4 बजे उठना, दर्शन करने जाना, और अपने घर हम्म। में मतलब अरे जो बाप बड़े रे, बड़े या यू एक एक्सपीरियंस मिनट इट। सुन ले। हाँ, हम्म। उनकी रिस्पेक्ट करना। मतलब एक तो मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया लाइफ में, कि हम उससे बहुत बातें करते थे कि तुमने क्या महसूस किया, तुम तो बहुत सारे दर्शन करने जाते हो, तुम तो बहुत रेगुलर हो। सिर्फ एक लाइन बोलता था, वो बहुत सज्जन आदमी थे, वो बहुत बढ़िया से बोलता। जबकि वो मतलब हांगकांग प्लेस्ड है इस समय, वो हांगकांग से जब इंडिया आता है, मतलब इंडिया की धरती पर पैर रखने के बाद उसका पहला काम है जन्मभूमि जाना। पहला काम मतलब इट्स लाइक दैट, कि बस घर पहुंचा, हाथ पैर धुला, एंड ही रैन लाइक दिस। तो हमने एक बार उसको अपनी समझ पर समझाने की कोशिश की। हमने कहा, अरे तुम आए हो, भगवान को तुम प्यार करते हो, ही इज एवरीवेयर। तो वो कह रहा हम थोड़ी जा रहे हैं, बुलाया है उन्होंने। मैंने कहा, अच्छा। कह रहा हाँ, हम थोड़ी जा रहे हैं। तो हमें एक मिनट के लिए लगा कि मतलब इज ही रियली दैट क्रेजी और व्हाट, क्योंकि नहीं विश्वास आ रहा था मुझे, ही इज रियली दैट अटैच्ड टू गॉड। फिर एक बार बात हुई, तो आ, मतलब एक जनरल, उसके किसी रिलेटिव को बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, उसका सारा घर खिलाफ था, मतलब ही रियली अर्न्स हैंडसम। और उसने लगभग 3-4 लाख रुपए उनको अपने कार्ड से निकाल करके दे दिए। तो सब मम्मी पापा सब उसके चिल्लाने लग गए। तो हमने उससे कहा कि हम बड़े इम्प्रेस हुए उसकी इस बात से। हमने कहा भाई सुनील, तुमने तुझे काम किया है, ये तो बहुत मतलब अच्छा लगा, क्योंकि वो हमसे डिस्कस करता था कि उस व्यक्ति जिसकी हमने हेल्प की है, ये कंडीशन है, ये है वो है। हमने कहा सुनील, तुम इसका हमें स्रोत बताओ भाई, हाउ यू डू दिस, क्योंकि अभी भी हम लोग फाइनेंस में तो बहुत वो है ना। उसने एक जवाब बिल्कुल, दिया, हाँ हाँ। उसने कहा कि इसी के लिए तो है मेरा ये धन। हमने कहा इसका क्या मतलब है? तो कह रहे मैं ही क्या करूंगा इसका, बैंक में तो पड़ा रहेगा, इसी के लिए तो है, इसी इसको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे मम्मी पापा क्यों गुस्सा कर रहे हैं कि तुम दे रहे हो ये? तो उन्होंने कहा उनको लग रहा है कि वो ये हड़प लेगा। और ये कौन होता है हड़पने वाला? मतलब हम मेस्मराइज्ड हो गए उसके इस आंसर से, हम्म, बिल्कुल। ये कौन, ये क्या हड़प लेंगे, जिसने हम्म, दिया था हम उसी को दे रहे हैं। एंड ही हम्म, टिल दिस डेट ही इज लाइक दैट। तो हम्म, बहुत, और उसके घर का मैंने खाना खाया, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं जीजा जी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। इट वाज लाइक आलू बॉयल करके आप फोड़ दीजिए और उसको सेक लीजिए, एंड यू उससे खाइए। तो एक कॉमन माइंड क्या कहता है कि ये फैमिली कितनी इकोनॉमिकली पुअर है या फलाना है, लेकिन जब हमने उस भोजन को खाया, तो हम बता नहीं सकते उसका स्वाद आपको। उसकी बहनों में इतना प्यार, मतलब सच बताऊं तो वो प्यार मेरे अंदर भी था। उनके परिवार वालों ने भी हमको बोला कि तुम आई हो तो इतना अच्छा लग रहा है रूपा, कि क्या बताएं। ये हम अपनी तारीफ के लिए नहीं बता रहे, मतलब लिटरली हम लोग बड़ी एक फ्रिक्वेंसी महसूस करने लग गए। फिर हमने अगले दिन कहा उनकी मम्मी से कि आपने जो कुछ बनाया है ये मुझे बनाना है आपके चूल्हे पे। उनके यहाँ चूल्हे पे खाना बनाता, हमसे कहेंगे नहीं नहीं तुम तो हमारी गेस्ट हो। और जीजा जी हमने उसको बनाया, और फिर हमने भी सबको खिलाया। बस क्या बताऊं, बड़ा प्यारा था, हम्म, बड़ा हम्म, प्यारा। हम्म।
बड़े सीधे लोग, बड़े ये जो है ना, ये जन्मभूमि और वृंदावन की महिमा है। ये हम्म जो हाँ रियल वृंदावन के वासी है ना, हम्म वो हाँ। जो है ये आपको, मतलब यू हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड, यू सी, और हम्म ऐसा नहीं है दैट कि इज। उनके घर में कोई माया का तत्व नहीं था। कभी कभी उनके घर में लड़ाइयां भी हो रही थी, दूसरे लोग आ रहे थे तो बाकी चीजें भी हो रही थी जो, लेकिन कोर में उनका बिलीव था, वो बिल्कुल फेथ से बाइंडेड था। दे होल ड्यूटी होल लिविंग वेज आर लाइक, जैसे कि अ, वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इट वॉज लाइक दिस। हम्म एंड इफ यू एक्सपीरियंस करम है, मतलब अगर आप वृंदावन वासियों और उनके थोड़ा सा वैसे, तो दे स्टिल बिलीव कि कृष्णा इज लाइक ए हाउस होल्ड पर्सन, मतलब हम्म ही इज हाँ लाइक दैट सेम बॉय हु यूज टू लिव हियर हम्म एंड ही हैज हाँ नेवर गॉन, ही इज स्टिल हियर। हम्म हाँ हाँ। ये है, लेकिन ये हर एक का नहीं है। अब वृंदावन में तभी हम्म देखो आप, आज की डेट में भी बहुत लोगों की यही डिजायर है कि वृंदावन जाके रहे लास्ट हम्म में। बहुत लोग ये जस्ट लाइक दैट नहीं है। और हम्म, ये जब भगवान चाहेंगे तभी उस आदमी की ये इच्छा पूरी हो पाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो है। अदरवाइज आपको पहले अपने घर को में प्यूरिफाई करना होगा। पहले हम्म यहाँ पर भगवान, जैसे अब अभी आप बातें कर रही ना, अभी आप एक जो ये चतुर्श्लोकी गीता का एक और आएगा जो अगला वाला आने वाला है, हम्म उसमें जो तुमने बताया है ना, तुमने आज दूसरा एक्सपीरियंस बताया है। पहला एक्सपीरियंस तुमने बताया था जब व्हेन यू वर इन डिलीवरी एंड यू हम्म एक्सपीरियंस हाँ जीजा द जी। द क्या नाम है, आई रिमेम्बर दैट, यू सी। हम्म तो हम्म यू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम्म एंड आज उस ये दिन से तुमने, जीजा जी मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन से मेरा पूरा माइंड एकदम, कहते हैं ना जैसे ग्लोब घूम जाता है। वो उससे पहले भी था, क्योंकि हम लोग तो बहुत भाग्यशाली मानते हैं हम तो अपने आप को, कि हम तो बहुत ही छोटे थे, शायद क्लास थर्ड फोर्थ में रहे होंगे। सुबह 4 बजे उठ करके जा रहे हैं गुरु जी की यहाँ, सारी चीजें सुन रहे हैं, सारे गीत गा रहे हैं। हम तो बहुत छोटे थे। और मैं आपको बताऊं, तब से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था, जब उनके सामने बैठते थे तो मुझसे पूछते थे मन ही मन में कि सच्ची में ऐसा होता है क्या, सच्ची में ऐसा होता है क्या, हाँ सच्ची में हाँ, ऐसा होता है क्या। लेकिन जब हमने अपनी मदर को देखा, मदर ने जो किया जीजा जी, उसको हम तो कहीं 10 साल बाद समझ पाए। मैं मतलब एक बात उठी तो आपको बताते हैं, मेरी मम्मी बहुत सच्ची डिवोशन में थी, बहुत सच्चा। बहुत, एक तो बहुत भोली थी, बहुत भोली, एकदम प्लेन माइंड। तो वो मुझसे जो कहता था लिटरली उसको फॉलो करती थी। तो हमारे जो गुरु कहते थे उसको बिल्कुल लिटरली डूब के फॉलो करती थी। और हम देखते थे क्योंकि हम छोटे थे और अटैच भी उनसे बहुत थे। उसका हमने अपने ऊपर असर 10-20 साल बाद देखा। मतलब ऐसा लगता था जैसे हमको कुछ चीजें जेनेटिकली नहीं ट्रांसफर हो जाती, ऐसे फैमिली ट्रांसफर हो गई। जब हम बड़े हुए तो हमको लगता था यही यही तो करेंगे तभी तो सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, यही तो किया जाता है। और फिर जो है, हमने जब मम्मी की डेथ देखी जिया जी, असल में हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको बहुत सारे लोगों के डेथ ट्रॉमा लोगों को ट्रीट करना पड़ता है। होता है ना, कोई गुजर गया तो लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो उन्होंने हम लोगों को जीजा जी बुलाया, सारे बच्चों को, और राधा दीदी से तो स्पेशली पूरी बात की। और कहा, हम बहुत अटैच थे अपनी मम्मी से, तो हमने उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम देखो जा रहे हैं, और कोई रोना धोना नहीं मेरे पीछे से, और तुम ये कर, माँ ने कहा, ये मदर करना। ने। जी जी हाँ जी। जी जी जी। तो हमने कहा कि हाँ, बड़ा डिक्लेयर कर रही है कि हम मरने वाले को डिक्लेयर करके मरता है क्या। हमें, यही को रुको, हम एक चीज बता रहे हैं। यही हाँ जानते हैं क्या हुआ जब मम्मी की डेथ होने वाली थी, जिस दिन हुई, तो मैं यूपीडेस्को में जॉब करती थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि राधा आज तुमको यूपीडेस्को नहीं जाना है। तो हमने कहा क्यों मम्मी? तो हमसे कहेंगी कि राधा पता नहीं अब हम और तुम मिले कि ना मिले, और तुम तो मेरी फ्रेंड हो। तो हमने कहा अरे मम्मी तुम ऐसे ही कहती रहती हो। कहेंगी नहीं नहीं राधा मैं सीरियसली बोल रही हूँ। जिया जी उन्होंने जो ज्वेलरी वगैरह थी वो सब हमको बताया कि किसकी कितनी है, किसकी शादी में देना है। हमसे उन्होंने कहा कि तुम पहले बहनों की शादी कर देना, पापा को छोड़ के कहीं मत जाना। और हमसे कहेंगी कि बेटा तुम लोग जो है वो मेरे मरने का बिल्कुल वो मत करना, ये तो प्रकृति का नियम है। और अब बेटा मुझे जाना है और तुम लोग अपना अच्छे से रहना। और कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि तुम लोग सब बहुत अच्छे से अपना जिंदगी गुजारोगे, मैं ये जानती हूँ। और जिया जी उन्होंने पापा से कहा कि देवेश हम थोड़ी देर आपकी गोद में लेटना चाहते हैं। तो पापा ने ऐसे करा, वो पापा की गोद में लेट गई, चुपचाप लेटी रही।
फिर जिया जिया जी एक कोई पेशेंट आ गया, पापा उसको दवा देने चले गए, बस शाम को 4 बजे उनकी डेथ हो गई। और जीजा जी वो जैसे डेथ के लिए बिल्कुल रेडी थी कि मुझे जाना है उधर। और जीजा जी ना कोई डर ना कोई शंका, नथिंग। लेकिन मैं हिल गई, क्योंकि कहते हैं ना, किसी चीज को देखना, सुनना और समझना, मतलब हम तो, मेरा तो मन करे कि अगर भगवान होते हैं तो भाई अब इस समय सामने आओ और इस घटना को मुझे एक्सप्लेन करो। मेरी नीचे तो मतलब धरती खिसक जाने वाली बात हो गई थी। हम पागल हो गए थे ऑलमोस्ट, क्योंकि हमको लगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। मतलब मेरे को यकीन थोड़ी था। जब हमने से लोगों ने कहा इनके मुंह में गंगा जल डालो, तो मैं तो पागल हो गई बिल्कुल। मतलब हमारा मन करे कि सबको हम घर से भगा दें, और ये जो भी जिनकी ये फोटो रखी हुई है इनको बुलाएं और इनसे हम पूछें कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है और क्यों होता है। और ये मैंने किया भी। मैंने कम से कम महीनों उनसे इस बात का आंसर पूछा, उसी फोटो के आगे बैठ बैठ के शायद तभी हम अपने आप को रिलीज भी कर पाए। मैं एक तरह की स्लाइट डिस्टर्ब फील करने लगी थी, स्लाइट। हम्म और लेकिन ये जी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, वो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मेरी मदर डेथ को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी खड़ी थी। हाँ, एंड देयर वाज नो फियर दिया जी, देयर वाज नो फियर, नॉट अ बिट। भाई नॉट जहां अ तक बिट। मैं समझ पाया हूँ, देखो ना, जी यही है प्रमाणिक गुरु के पास पहुंच जाना, और उनके क्या नाम है, जी उनके साथ में रहकर फिर वो पढ़ने वढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। जी 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 आप समझ गए हाँ, ना। डेफिनेटली हमने हाँ, मिस ये है किया। असली चीज। जी। और आप ये देखो ना, तभी देखो, मतलब सो फार एज आई रिमेम्बर योर मदर, हम्म मतलब व्हाट ए काम फेस शी हैड। मतलब बाकी हम्म लोगों का चेहरा आप देखोगे और उनका चेहरा अगर आप यू रिमेम्बर, मतलब आई एम नॉट टेलिंग टू प्लीज यू बिकॉज यू आर जी जी हर डॉटर्स, बट हम्म बट आई रिमेम्बर हर एज ए वेरी वेरी, मतलब बहुत ही क्लियर कॉन्शियस वाली कर्म है, मतलब वेरी जी सिंपल एंड कर्म है, वेरी कॉन्शियस एंड जी मतलब इंटरनली ब्यूटीफुल। हम्म एक्सटर्नली तो खैर वो ब्यूटीफुल थी, दैट हम्म वाज गॉड गिफ्टेड, बट कर्म है, शी वाज। और कितना उन्होंने, बताइए कर्म कितने, जैसा मेरी वाइफ बताती है, कितने लाड़ दुलार से उनको पाला गया था। जी और हाँ, वो जो है ना, व्हेन शी केम, कितना सफरिंग हुई उनको मैरिज के जी बाद, जी 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 हाँ। है ना, बट शी नेवर फ्लिंच्ड। हम्म मतलब कभी भी उनके अंदर में कोई गलत भावना नहीं आई, जैसा जी मेरे को इम्प्रेशन है। जी तो जी ये जो तुमने जो बताया है ना, ये दूसरा जो ये दूसरा, या जो फुल, यही जो है नेक्स्ट श्लोक में आएगा। हम्म बोधयन्तः परस्परम, दिस इज व्हाट द डिवोटीज डू एक्चुअली। जी, दे, मतलब वो भगवान की कथाओं को शेयर करते हैं, और हम्म भगवान से रिलेटेड जो उनके खुद के एक्सपीरियंसेस है हम्म उसको शेयर करते हैं। हम्म दैट इज दैट ये चतुर्श्लोकी गीता में भगवान बता रहे हैं, ये जी डिवोटीज के सिम्टम्स है। हम्म आई एम नॉट टेलिंग यू कैन, मैं मतलब जी सो दैट यू बिकम प्राउड एंड ऑल दैट, नो। यू जीजा जी, सी, अगर आप, हाँ, मैं एक बार जब उस दिन आप चतुर्श्लोकी गीता पढ़ रहे थे ना, तब मैंने पता है क्या महसूस किया। मैंने महसूस किया कि देखो गॉड की कितनी दया है कि वो जो कुछ है वो खुद हमें खुल के बता रहे हैं कि हम ये डेफिनेटली। हैं। डाउट करना तो जी छोड़ दीजिए, दूर की बात है। एक जो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो खुद अपने को डिफाइन कर रहा है कि मैं ये हूं, और तुम लोग इसको मान लो तो तुम्हारा ही उद्धार होगा। ये कितनी बड़ी कृपा है। कैन यू बिलीव इट। मतलब अब देखो धीरे से तुम, देखिए, हम और बिल्कुल। लोग कोई अपने जो जो दुरात्मा है ना, वो ये सोचेंगे यार ये अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है ये आदमी। जी ये वही देखो, हाँ, चीज ये समझते। डिवोटीज और नॉन डिवोटी में ये फर्क आ जाता है। जी जब जो आदमी कृष्णा को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मानता है ना, वो कहेगा यार ये तो सेल्फ एग्रेडाइजमेंट हो रहा है। जैसे कि हाँ मैं नॉर्मल आदमी हूं, मैं जा कहूं नहीं यार मैंने तो बड़ा आईआईटी से पढ़ाई की है, मैंने पीएचडी हाँ, किया है, मैं इतना बड़ा लाट साहब हूँ, उसी तरह से वो लेगा। लेकिन देखो जो डिवोटी है, वो जी इसको बड़ा डिफरेंट, उसके दिमाग में जाएगी चीज। यू सी, बिल्कुल ये बताइए भगवान कितने करुणामयी है, करुणामयी है। कि वो बता रहे हैं लोगों को जो सुनना चाहते हैं, जो बिल्कुल। जिनके कान खुले हुए हैं, जिनके कान हम्म, में क्लॉग्ड नहीं है, जी वो उनके, वो कान से घुस करके उनके हृदय में जाएगा। बिल्कुल।
मेरा जय यहाँ पे प्रश्न है। रूपा, हाँ रजत। रूपा हम यहाँ पे जय जी, हम यहाँ पे ये मानते हैं कि हमारी तो इतनी रेंज है नहीं कि हम गॉड को इतना जान पाए अभी। तो जय जी वो खुद हमें एक एक चीजें बता रहे हैं, वो ये जानते हैं कि अभी हम लोगों को इतना नहीं पता है सामान्य ह्यूमन बीइंग को, तो वो बता रहे हैं कि मैं एक्चुअल में ये हूं, तुम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ो। तो ये उनकी कितनी बड़ी कृपा है। आप देखो ना, यहीं पर जो मतलब पिछले बार जब हुई थी चतुर्श्लोका, जी जी जी। उसमें प्रभुपाद ने उनको मतलब मूर्ख जो कहा है ना, बार बार वो मूढ़ा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं प्रभुपाद। वो हम्म। मतलब उसको आपको थोड़ा समझ करके उसको रिएक्ट देखिए, करने के बजाय हम ये हैं ही मूढ़ा। एक्चुअली बार बार रिपीटेडली ये चीजें क्यों बताई जा रही, क्योंकि हम हैं मूढ़ा। हाँ, ये तो है ही है। यदि मूढ़ा का मतलब सिंपल ये है कि अभी आप उस डायरेक्शन में नहीं है। तो यहाँ पे यदि मूढ़ा का सिंपल मतलब है, मूढ़ा वर्ड के थ्रू वो आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को और बढ़ाइए, गॉड की तरफ और मुड़िए, तो समझ आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सिंपल। वही मानना वही है, शुरू करें, यही है, मानना। यही है। लेस इंटेलिजेंस मतलब है द वेरी फैक्ट दैट दे आर लिसनिंग टू इट, चाहे डाउट ही हो रहा है उनके दिमाग में, हम्म। बट दे हाँ। आर लिसनिंग टू इट, उनके कान में जा रहा है। वही हम्म, बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल। बहुत से लोग तो है ही नहीं है वहां पे, जो हाँ। वहां पर रह करके चाहे आर्ग्यू ही कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, स्टिल हम्म। दे आर फार फार बेटर देन टोटल कर्म है जो लोग एथीस्ट। भगवान तो समदर्शी है, वो तो कृपा हम्म। अब असुरों पे भी करते हैं और डिवोटीज पे भी उनके बराबर है। लेकिन जो उनका डिवोटी है वो सब बताएंगे, खुद बताएंगे, यस। मैं है ना। एक मेरा प्रश्न है वरुण से, और एक यहाँ पे मैं इंसिडेंट अभी एकदम करंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वरुण से मेरा एक प्रश्न ये है कि वरुण, तुमने जो हमको वीडियो शेयर किया था ना, टू लेट माई हम्म चाइल्ड करके, हम्म भाई मैंने उनको, बड़ा प्यारा है, आप सब लोग सुनिएगा, मैंने उनके साथ बैठ के उसको देखा, वो भाई बड़ा प्यारा है, बनाया है वीडियो, दैट्स रियली, तुम भी आती हो उसको देख के। तो इसको इसके साथ मैंने बैठ के देखा। तो मुझसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले तो हमें ना मैया बोला, पुकारने लगा। आप इसका प्यारापन देखिए, वो बिल्कुल वर्ldly बच्चा है, अभी दुनिया वाला है, उसे ये हम्म चाहिए वो चाहिए। तो मैया मैया करके बात करने लगा। हमने कहा ठीक है, तुम मुझे मैया ही कहना बेटा। दूसरा हमसे कहता है बातें सुनना बच्चा, बच्चे के मन की, कह रहा है फिर इनमें और हम में क्या डिफरेंस है, ये माखन चुराते थे और मैं ये चुरा लेता हूँ, तो हम्म हम तो सभी बच्चे तो करते हैं, तो आप मुझे इतना मारती क्यों है? मैंने कहा देखो, उसकी मैया भी तो मार रही है, उसकी मैया क्या हम्म मैया मारेंगी नहीं कि तुम चोरी कर रहे हो दूसरों के घर से माखन? खराब नहीं लगता? गलत संस्कार नहीं पड़ जाएंगे? तो कह रहा मेरे कहने का मतलब है तो सभी तो करते हैं, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो नहीं करूंगा। मैंने कहा अच्छा। फिर कह रहे हैं हमसे, जब उनकी वो सारी लीलाएं शुरू होती हैं कि वो उस पूतना को मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, हमसे कह रहा है मम्मी क्या मैं भी इस तरह से किसी को मार सकता हूँ? इतनी ताकत होती है किसी बच्चे के अंदर? तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये दिव्य बालक है। तो हमसे कह रहा है कि दिव्य बालक का क्या मतलब है? कि इनके अंदर क्योंकि अभी प्लेग्राउंड में जाता है ना, सब बच्चे मिलते हैं, लड़ाइयाँ होती है, सब ढिशुम ढाएं होती है। कह रहे दिव्य बालक बालक का क्या मतलब है? मतलब ये सबको ऐसे टॉय की तरह उठा उठा के घुमा घुमा के फेंक देते होंगे, इतना बड़ा, वो देखा नहीं कितने बड़े बड़े जो वो थे, आई डोंट हाँ हाँ, रिकॉल देयर। तृणाव्रत वगैरह, हाँ ठीक ठीक। हाँ हाँ। तृणाव्रत तो वृत्तासुर। हमने कहा हाँ बेटा, हम्म वो इतने पावरफुल हैं कि वो इतना फेंक सकते हैं। तो कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात उसने कही, कोई बात हुई तो उसने कोई बड़ा काम किया लेकिन क्रेडिट किसी और को दे दिया। कह रहे मम्मी इन्होंने झूठ क्यों बोला, किया तो इन्होंने था उसको खत्म, और कह रहे हैं कि हमको लगता है तुमने तुमने अपनी शक्ति से कुछ किया, तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा बेटा झूठ नहीं बोल रहे, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो अपना बड़ा काम करते हैं, वो अपने से छोटों को प्रोत्साहित करने के लिए क्रेडिट देते हैं कि तुमने किया है, हमने कहाँ किया। तो कह रहा एकदम चुप हो गया। तो कह रहा है अच्छा, जैसे नित्या एक छोटी बच्ची है, प्लेग्राउंड में आती है, कह रही हाँ जैसे नित्या है वो जब हमें मारती है तो मुझे कहती अब मजा आया, तो मैं उससे कहता हूँ नहीं मुझे तो चोट ही नहीं लगी, मुझे तो चोट ही नहीं लगी। और मुझसे कोई पूछता है नित्या ने तुम्हें मारा, तो मैं कहता नहीं नहीं नित्या ने मुझे नहीं मारा। अरे मम्मी वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, अच्छा कोई बात नहीं, उसके तो गाल भी मतलब उसके तो हाथ भी मेरे चीक्स तक नहीं पहुंचते। तो इसके जो सवाल थे मैं उससे थोड़ा फंसी हूँ,
उसने पहला सवाल मुझसे ये किया कि मम्मी क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ? तो मैंने उसको अभी आधा जवाब दिया। मैंने कहा मैं थोड़ा आप लोगों से डिस्कस। और सीरियसली उसने मुझसे पूछा कि मतलब क्या ऐसा होता है और मैं ऐसा बन सकता हूँ? मैंने कहा बेटा सच बताऊं तो तुम वही हो, तुम भूले हुए हो। सिर्फ तुम्हें एक साधना करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ को डिवोट करना पड़ेगा इस ज्ञान की तरफ, इस प्रैक्टिस की तरफ कंसिस्टेंटली। तो तुमको भगवान ने, हम लोग एक प्रार्थना गाते हैं जो इसके साथ ही हम गाते हैं, एक तो वही होगा जैसे आपने सुना है ना कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। तो हमसे कहने का अच्छा तो फिर अभी वर्ल्डली लाइफ में कष्ट तो बहुत सारे हैं ही, इतने पनिशमेंट है, नहीं तो कह रहा है इन सब से मुक्ति मिल, छुट्टी मिल जाएगी, मतलब अपनी भाषा में कह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगी। इन सारी और भी मेरे प्रश्न है, मैं तुम्हें वॉइस नोट पे भेजूंगी क्योंकि वो तुरंत तुरंत उठते हैं। हम्म तो हमसे इसने पूछा कि मम्मी ये कोई मूवी है और मूवीज की तरह जो मैं साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की देखता हूँ, या ये वाकई में कुछ है? तो हमने उससे हम्म कहा, हमने कहा बेटा यही है। वो तो हम्म माया की भी, माया का पार्ट है। हम लोग हम्म डायरेक्टर्स क्या है, माया का एक पार्ट है, ये उनकी माया ही तो है जो वो रिक्रिएट कर रहे हैं। तो कहने लगा लेकिन मम्मी वो अच्छी लगती है, वो समझ में आती है, लेकिन अच्छी मुझे ये भी लग रही है। मैंने कहा हाँ हम लोग इसको रोज देखेंगे। तो पहला तो मेरा ये था कि तुमसे मैं कुछ सवाल करूंगी, वॉइस नोट भेजूंगी, तुम जो समझते हो हम्म, अपने experience से मुझे बिल्कुल बताना, आंसर पॉसिबल। हिज क्वेश्चन, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास कुछ और ऐसा हो, क्योंकि एक कंसिस्टेंट वॉचिंग बहुत जरूरी है इस तरह की हम्म हम्म रिपीटिशन, क्योंकि बच्चे भी वीडियो से, कहानियों से ज्यादा अच्छे होते हैं। तो वो मुझे भेजना अगर तुम्हारे पास हो तो, एनी हाउ किसी भी टाइप की, वो बड़े टाइप की भी होंगी बड़े लोगों के लिए, तब भी उसको बैठ के देखूंगी मैं उसके साथ में, तो उसके ऊपर अच्छा समझ में आएगा उसको थोड़ा सा। और यहाँ पे जो मैं एक घटना आप लोगों को बताना चाह रही थी अपने तजुर्बे से, अभी 1-2 दिन कुछ पहले, मतलब लिटरली वी गॉन थ्रू अ वेरी सीवियर, कह सकते हैं सोशल काइंड ऑफ एक्सीडेंट। जैसे हम्म कोई बिल्कुल ही आपके ऊपर कोई जैसे होते नहीं क्रिमिनल, आपके ऊपर अटैक कर दें, कुछ कर दें। तो भी हम लोग फिर भी एक रिस्पेक्टेबल वे में रहने वाले लोग हैं सोसाइटी में। तो मैं मतलब उद्विग्न बहुत हुई। हमारे हस्बैंड खैर बिल्कुल डिफरेंट उसमें रहते हैं, तो वो नहीं उद्विग्न हुए, लेकिन मैं उद्विग्नता महसूस कर रही थी। तो मैं गई और मैंने अपने भगवान से कहा, मैंने कहा भगवान जी क्या था? तो मैं आपको एक जवाब बता रही हूँ जो मेरे मन में आया है। मेरे सारे सवाल ही वहां ड्रॉप हो गए और मुझे लगा कि ये सब माया में है, आप तो ये सब कुछ होगा। आप बस इतना देखें कि आप भीतर से आप परेशान तो नहीं हो रहे। आपको परेशान नहीं होना है। आप इस चीज को समझें कि आपके साथ अगर आप भगवान को मानते हो तो जो कुछ हो रहा है वो इनकी बिना परमिशन के नहीं हो रहा। जो हम लोग लास्ट श्लोक्स में पढ़ रहे हैं, नथिंग कैन हैपन, कहते नहीं पत्ता नहीं हिलता और बेमतलब नहीं हिलता। मुझे लग रहा था कि मैं, मेरे कम से कम 10-15 दिन बर्बाद हो जाएंगे, इतनी सीवियरिटी थी उस घटना में। अब मेरे 10-15 घंटे भी नहीं बर्बाद। सही मौसी, यही दिस इज द पावर ऑफ दिस भक्ति इज द पावर मौसी। ऑफ, क्या नाम है, तुमने तो दिस पूरा ही इज द बता पावर ऑफ दिया। भक्ति। और जो हम्म, ये आपने जो मतलब बताया वैसे ना, तो तुम वन ऑन वन भी हम्म, वरुण से बात कर सकती हो, लेकिन क्या नाम है, क्या है कि मतलब तुम्हारे बच्चे के साथ मतलब कितनी बड़ी कृपा है, एकदम वन व्यूइंग में हो गई है। नंबर जी 1 ये, मतलब मैं ये वरुण को बहुत रोक के अच्छी बता चीज रहा है। हूँ। और जी नंबर 2 जो तुम्हारे, जो तुमने अभी लास्ट में जो इंसिडेंट बताई है, दैट हम्म, इज एग्जैक्टली हम लोगों के साथ में होता रहता है। जी जी हम्म ये हर एक के जो जो भी आ गया ना, तो माया का तो अटैक होगा, और जब आप हम्म, डिवोशनल सर्विस करेंगे और ज्यादा होगा। जी हम्म, बिकॉज यहाँ माया पर को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे क्लचस से कोई आदमी निकल रहा है। हम्म, जीजा जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि एक बार बताए, पता तो था और प्रैक्टिस में भी था, लेकिन ये जो अब हम लोगों ने शुरू किया है ना, मैं आज आपको बताऊं, मुझे बहुत जुकाम है और अभी तक का जो है ना, जैसे ना नोज ब्लॉक कर गई है। मैं कभी ऐसे में नहीं उठती, मतलब लिटरली मैं अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ, चाहे छुट्टी हो या ना हो, या मिनिमल वे में मैनेज करके अपना काम चला लेती हूँ। ही टोल्ड मी कि रूपक मेरी तबीयत काफी ठीक नहीं लग रही मुझे, आज तुम रेस्ट कर लो तभी तुम क्योर महसूस करोगी। और मैंने भी अपने मन से कहा कि ठीक है मैं मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले राधा भी यही कह रही थी। हमने जो
महसूस किया है आप लोगों के साथ बैठ बैठ के वो अंदर से इतना सहारा दे रहा है, इतना क्या बोले उसके लिए शब्द नहीं, प्रेम कह ले इसको, कि मेरे मन ने कहा कि लेटे रहकर भी कुछ ना कुछ तो मन में चलेगा ही, अगर ये सुनेंगे तो हमको बहुत, ये हम छोड़ नहीं सकते। यू सी दैट इज द, ये भगवान की कृपा के बना हुआ है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। अगर आप देखें ना इसमें भी कैसे भगवान ने मैनेज किया कि आई सेंड द मैसेज एक्सीडेंटली टू जी। यू, Accidentally. very हाँ accidentally, absolutely. हाँ And you see the message you grabbed, हाँ क्योंकि भगवान चाहते मतलब हैं ना, वो भगवान भगवान चाहते हैं ये। चाहते हैं अरे यार कि भाई ये आप लोग भी है ना, आके यही ज्वाइन वो करें जो है इसको। ना, आज तुमने बहुत मतलब बड़ा, यू सी दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो तुमने अपने मतलब तुम लोगों ने जो बताया है ना अपनी मदर के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने, दिस इज द द मतलब ये डिवोटीज करते हैं आपस में। हाँ दैट इज व्हाट इज द, इसके अंदर में कोई हाँ मेरे को शक नहीं रहा एक्चुअली। माई थिंकिंग अबाउट चतुर्श्लोकी गीता, अबाउट हाँ भगवत गीता हैज बीन वैलिडेटेड। हाँ हम्म हम्म मतलब वरुण के बच्चे के साथ तो मैंने देखा था कि हाउ ही इज हम्म गेटिंग मेस्मराइज्ड बाय दिस हाँ वीडियो, डे आफ्टर डे। हम्म ये और तो, आपके बेटे के मतलब साथ तुम तो देखना कि ना, पहली मैं ये व्यूइंग जो, में। और एक्चुअली तुम्हें कोई नए जवाब लर्न करने की जरूरत नहीं, यू हैव ऑलरेडी, बिकॉज तुम हो ना इस उसमें। अदरवाइज कोई नॉर्मल माँ तो दिखाएगी नहीं, वो कहेगी क्या यार व्हाट इज दिस, हाँ है कि राक्षस देखिए ना। दिखा रहे हैं बड़े, वो उसको दिखा रहे हैं पूतना टाइप की औरत को मतलब इतनी भयंकर औरत को बच्चे को दिखाने का क्या मतलब हाँ है ना। ऑफ कोर्स इन द बिगनिंग दे हैव शोन हिम हर टू बी वेरी ब्यूटीफुल। मैंने तो यहाँ तक मैंने मतलब वरुण से शेयर किया था कि भाई इसको, इस वीडियो को नॉट ओनली बच्चों को दिखाना चाहिए बल्कि पेरेंट्स को बैठ के देखना चाहिए खुद भी। साथ। हाँ मौसी आप म्यूट पे हैं, म्यूट अनम्यूट कर ली। तभी असर ही होता है, क्योंकि ऐसे हम ही हम्म बड़े लोग हैं, जब कुछ देखते हैं तो माइंड में एक थॉट प्रोसेस तो आती है, बच्चे की भी आती है, बच्चा उसका आंसर हम्म चाहता है, तभी तो वो चीज फर्म होगी ना उसके बिलीव में, बिलीफ भी तो तभी डेवलप होगा उसके अंदर। तो तो उसके सवाल सुन के हमको बड़ा अच्छा लगा। और थोड़ा सा ये जो एक गैप आ गया है ना, क्योंकि ये लोग तो, अब बच्चे आजकल के किस तरह के वीडियो देखते हैं, ये तो खैर टेक्निकल टाइप में इसका बेंट है, तो टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल टाइप के बहुत देखता है ये। तो मैंने, हम लोगों ने इसको दिखाया वैसे रामायण भी पूरी दिखाई है, जो उनकी है, और बी आर चोपड़ा जी की वो हाँ भी हाँ दिखाई हाँ। पूरा। हम्म तो मतलब एक जाहिर सी बात है, बनाया तो कॉमन लोगों के लिए गया, तो इम्पैक्ट तो पड़ता हम्म ही है। तो देखा है उसने, तो मतलब उसको अच्छा लगता है ये सारी चीजें, भाई कहता आप है। ये समझ लो कि ना मैं कि बड़े लोगों को ये कलयुग में ये धार्मिक ये इस टाइप की चीजें करने में बड़ा डर लगता है बच्चों को लेके कि भाई वो इतना competitive नहीं रह पाएगा। फिर वो करे, मैं बिल्कुल भगवत गीता पढ़ मतलब के बारे में, इन चीजों के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो क्या नाम है, मतलब वो कंपटीशन में पीछे जो, ये ऐसा होने वाला है नहीं। नहीं यू नहीं सी ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। और एक बात है, ये जो लिखा गया ना, जो भगवत गीता में आगे भगवान खुद बताएंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेति तत्वतः, ये जो इस लाइफ का जो पर्पस है, आप नॉट ओनली क्या नाम है यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बट यू आर हेल्पिंग अनदर सोल। वो बाप का बच्चा ही नहीं है बट वो एक अनदर another सोल हैज soul। बीन हम्म, इंटरेस्टेड इन योर कस्टडी। हाँ ही इज नॉट, मतलब वो जो है ना यहीं पे अनासक्त होकर के उस बच्चे को आपको क्या नाम है पालना है। हाँ आसक्त होकर के, और जो तुम कर रही हो, यू सी दैट इज वेयर द ट्रिक लाइज। हाँ बड़ा मुश्किल है भाई, अदरवाइज आसक्ति में, तुम्हारी माँ को देखो कोई आसक्ति नहीं थी आई हाँ थिंक, क्या नाम है मतलब वैसे, आई डोंट वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट, बट वो शी वाज सो काम। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग कर लोगी। दैट इज अनासक्ति। जी 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 जबकि वो अपने घर की कंडीशन जानती थी सब जी कुछ। जी जी
एक्चुअली उनका काफी ब्रिलियंट है कि मतलब उन्होंने अपनी सारी लिटरली उन्होंने शी वाज ऑलमोस्ट, ऐसा सुनने में समझ में आता है कि शी हम्म, प्लान्ड इट आउट, प्लान्ड इज नॉट द राइट वर्ड, बट उन्होंने अपनी सारी मटेरियल ड्यूटीज भी आप लोगों से बात वो ज्वेलरी करके वगरा सब कुछ बता दी अपनी उसने, उन्होंने कि भाई अपनी कहाँ वो पर है, उन्होंने क्या है, कंक्लूड करी। उसके किस किस बाद को कितना देना है। हाँ, उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ हर रिलेशनशिप को कंक्लूड करके कंक्लूड किया बड़ा उन्होंने, बस बड़े कंक्लूड किया ब्यूटीफुल। उन्होंने एक तरह से। हम्म, एंड भाई इट हैज उसके बीन अ बाद ग्रेट फिर देन लर्निंग शी फॉर मी। वाज जी वेरी जी ग्रेट लर्निंग। एंड मतलब बताइए उन्होंने मतलब शी न्यू कि मतलब शी विल जी। पास ऑन, एंड शी न्यू शी वाज गोइंग टू मतलब यस वेरी वेरी नाइस। एंड हम्म, शी न्यू कि मतलब ये ऐसा होता है, शी हम्म, न्यू अबाउट डेथ एंड शी वाज नॉट स्केयर्ड। आप देखो मतलब ना भगवत गीता में जो उन्होंने जो भगवान ने श्लोक कहा है ना, वो शी लिव्ड इट। क्या नाम है, हम्म जन्म कर्म नहीं नहीं, वो जो है क्या नाम है, जिसमें तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न हम्म मुह्यति। क्या है पहली लाइन, बिल्कुल। क्या है? हम्म, वो देहो स्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। मतलब शी वेंट थ्रू ऑल दिस। हम्म, तथा देहांतर प्राप्तिर, शी न्यू, शी नोज कि कर्म में मेरी डेथ नहीं हो रही है। हम्म, और तथा ये देहांतर मौसी प्राप्तिर धीरस, तभी उनको डर रही। तुमने ये भी शेयर की, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, मतलब शी वॉज हम्म, धीर, धीर थी वो। अच्छा, हम्म, आप तुमने ये भी हमसे शेयर किया था राधा ने, कि जी भाई बहुत से लोगों को अपनी मौत के टाइम में बड़ा डर लगता है। जी। Hmm. और एक्चुअली क्या नाम है, मतलब जो जो भी नॉर्मल लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, डर लगता ही लगता है। बिकॉज हम्म, many of us, we are just, क्या नाम है, may not be at that level where क्या नाम है, some other soul has reached, हम्म, someone else who has been so much purified already। यस, क्योंकि उसके लिए प्यूरिफाई इसमें होना ना बड़ा इसके जरूरी है। लिए बहुत जरूरी है। इस चीज पे मैं वो आपने जो आपने शेयर किया ना, आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू जो आपकी मदर की जो वो वाली जो आपने शेयर करी कि वो अपने गुरु महाराज की बात को फॉलो करती ही थी, हम्म, रिजिडली फॉलो करती थी। हम्म, यही यही तरीका है प्यूरिफिकेशन का। जैसे हम लोग ये श्रीला प्रभुपाद की बुक उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम्म, उन्होंने कहा हमसे कि भाई तुम चैंटिंग करो या तुम ये किताबें पढ़ो, भगवत हम्म, गीता श्रीमद्, यू हैव टू एक्सेप्ट एन गुरु, एन अथॉरिटी, और उसको आपको जैसे जो आप आज मौसी बता रही थी कि रिजिडली आपको फॉलो करना है उसको बार हम्म, बार। हम्म, और बिल्कुल मौसी, आई एम रियली ग्लैड कि आपने अपने बच्चे को इसमें इसी, जैसे अब मैं एक चीज और आपको आई जस्ट वांट टू शेयर कि भाई देखिए आपके बच्चे को कितना नेचुरली ही इज लर्निंग फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हम्म, ये चीज सिर्फ लॉर्ड कृष्णा से हो सकती है, पर्सन से सीख सकता है आदमी, ये परमात्मा से नहीं सीख सकता। परमात्मा के कंसेप्ट से ये चीज नहीं सीख सकता कि अच्छा ये ऐसा क्यों किया, कि उन्होंने करा तो उन्होंने था लेकिन उसका क्रेडिट दूसरे को क्यों दे दिया। अच्छा ये चीज, ये पता है, ये आपको बताऊं मैं, ये एक रनिंग थीम है लॉर्ड कृष्णा की पूरी लाइफ। पूरी हम्म, लाइफ वो हर समय अपने डिवोटी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। हम्म, हम Wow. उसको ग्लोरीफाई करने में लगे हुए हैं, वो एक्चुअली हमको ग्लोरीफाई करने में लगे हुए हैं। हम्म, कि मतलब कि यार अर्जुन को क्रेडिट मिल जाए, हनुमान जी को क्रेडिट मिल जाए, वो हर समय हमको ये अपॉर्चुनिटी देने में लगे हुए हैं कि भाई इसको क्रेडिट मिल जाए। जैसे श्रीला प्रभुपाद को क्रेडिट मिल गया कि भाई हम्म, उन्होंने पूरे जगत गुरु बन सके, जबकि ऑफ कोर्स लॉर्ड कृष्णा इज द, श्रीला प्रभुपाद वो हैं, वो लॉर्ड कृष्णा का प्रेम सबको बांटने में लगे हुए हैं, और लॉर्ड कृष्णा जो है वो श्रीला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करवाने में लगे हुए हैं। हम्म, तो ये एक्चुअली जो मैं आपको एक वो जो संक्षेप में जो आंसर दूंगा कि हम लोग, ये रिलेशनशिप है हमारी, जो जैसा आपके लड़के ने पूछा ना कि क्या मैं वैसा, हमारी रिलेशनशिप वो है कि हम भगवान के साथ ये वाली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम भगवान नहीं बन सकते, बट भगवान से हम ऐसी रिलेशनशिप बना सकते हैं कि लविंग रिलेशनशिप, हम्म, जिसमें कि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं और भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। हम्म, ये रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम्म, जिसमें कि भगवान हमें एम्पावर कर देंगे फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम भगवान का काम करने में लगे हुए हैं। हम्म, ये हम लोगों को थोड़ा धीरे धीरे अंडरस्टैंड, जैसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, वी आर हम्म, द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, वी आर हम्म, हेयर टू सर्व द लॉर्ड। ये हम्म, चीज हम लोग थोड़ा धीरे धीरे वो चीज अप्रिशिएट कर जी, पाएंगे, बट
ये बिल्कुल। शिला प्रभुपाद का ये हम लोगों को टीचिंग है हम्म। उसमें। आज जो बट आई एम तुमने रियली बताया ना, ग्लैड। ये दो चीजें मैं और लास्ट में मेंशन करना चाहता हूँ जी। कि एक तो पहली बात ये है कि तुम्हारे बच्चे को पता नहीं कितने कार्टून देखता हुआ, क्या किसी और कार्टून का इतना इम्पैक्ट हुआ, नंबर वन। हम्म। और नंबर टू, तुम देखो ना, ये पर्सनल रिलेशनशिप बात की वाली जो बात वरुण ने कही है, अगर हम्म। आप देखो तो बच्चे ने वो एक्सप्रेस कर लिया कि मैं वीडियो देख करके तुम्हारे हम्म। साथ। और दूसरा हम्म। देखो, तुम अगर मथुरा में जो तुम्हारे वो जिनके घर में तुम रहती थी, हम्म। मतलब ही हैड दैट पर्सनल रिलेशनशिप विद द हम्म। सुप्रीम लॉर्ड। सुबह हम्म। सुबह 4 बजे उठ के जा मतलब रहे वो हैं, एयरपोर्ट उनको से कह रहे लौटते हैं, क्या नाम फिर है, तुरंत मतलब भागते हुए जा रहे कि हैं। अगर वो हांगकांग में भी रह रहा है तब हम्म। भी वो कनेक्टेड है विद द हिज ही इज भगवान। मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप। हम्म। मतलब दैट इज पहले रियली बहुत एक्सट्रीमली को देखा ब्यूटीफुल। था कि, एक डाउट में आ गए थे, है ना, लेकिन उसको मतलब एक व्यक्ति को हम देख करके हमको ऐसा लगा कि नहीं भैया ये रज स्पेशल है। ये मौसी एक्चुअली में ये हमारी बहुत बहुत ही रिच, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली रिच एक हिस्ट्री ऑफ डिवोटीज हैज बीन लॉस्ट। एक्चुअली पता है आपको, लॉस्ट। हाँ। डिवोटीज ने अपनी लाइफ दी है आर्च विग्रह को बचाने के लिए इन्वेडर्स से। इन्वेडर्स आ रहे थे, आर्च विग्रह को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी है। हाँ। लोगों ने इस तरह की डिवोटीज की बहुत अमेजिंग एंड इंटेंस हिस्ट्री है जो लॉस्ट हो गई है। ये अब जैसे ये अब ये थोड़ा थोड़ा रह गया है, जैसे आपने ये आपको ब्लेसिंग हुई है, चांस एनकाउंटर हुआ एक डिवोटी के साथ। हम्म। अदरवाइज इस तरह की ही है मतलब डिवोटी। ऐसे डिवोटी वो बिना पढ़े उड़े सीधे वैकुंठ धाम जाएंगे, वो भगवान के हम्म। पास। उनको कोई हम्म। नहीं। पढ़ता यही और वढ़ता ये भी कुछ नहीं है। पढ़ता है वो, बस ऐसे ही मस्त, वो कुछ नहीं पढ़ता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, बिकॉज ही हैज ए रिलेशनशिप विद द, जहां तक जितना तुमने बताया उससे लगता है। और प्रभुपाद जी ने ये चीज एक्नॉलेज की है। एक हम्म। लेडी जो है, मैंने पता नहीं पहले बताया कि नहीं, हाँ वहां उनको बताया। वहां मंदिर में जो जी। डेली सुबह जल भर के लाती थी, हम्म। और खाली उसे सिंपली वो नहा धो करके जल लेकर आती थी, और चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, एंड हम्म। वो चलाई। उसने कहा कि वो शी इज गोइंग बैक, हम्म। वो भगवान के पास जा रही है लौट के, हम लोग जा पाए या ना जा पाए, बट शी इज गोइंग बैक। तो बिल्कुल। वृंदावन के लोगों की ये महिमा है। हम्म। वृंदावन क्या, आप कहीं पर भी रहें, आप अगर भगवान के, आप असली, यू नीड नॉट फियर। और हम्म। एक बात हम्म। और बता दूं मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ, आजकल भाई बहुत बुरा टाइम आने वाला है, स्पेशली आ गया ये है, वन एक्चुअली वन आ गया आ है। चुका है, जो ये सिंगल चाइल्ड या मतलब जो वाली फैमिलीज है ना, दे हैव टू रियली प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग हॉल। हम्म। स्पेशली जो लोग आसक्ति में हैं, उनके लिए बड़ा बुरा समय आना, अगर वो बच्चों को भी डिवोटी नहीं बना रहे हैं, या एटलीस्ट उनको कुछ ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो दे आर इन फॉर ए वेरी वेरी पेनफुल फ्यूचर, क्या नाम है, इन द एंड। ये बात पक्की है, यू टेक इट फ्रॉम मी। हम्म। क्योंकि इस बहुत कंटेक्स्ट में ज्यादा एक्चुअली। सोसाइटी का डिजेनरेशन हो चुका है, और ये हम्म। उसी रास्ते पे जा रहा है। इस डोंट हम्म। थिंक कंटेक्स्ट कि में अगर मैं एक्चुअली बच्चे ये को, लोग। अगर मैं बहुत पैसा कमा लेगा तो सुख, क्योंकि हम लोग जो है ना सुख और संतुष्टि की खोज में लगे हुए हैं, सारा सारे लोगों का यही है, पैसे से नहीं सुख मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी से, इस सबसे कुछ नहीं होता, हम्म। नथिंग यू विल गेट। जो परसेंटेज ऑफ मेरे गैरिएटिक पेशेंट्स आते हैं जीजा जी, मैं आपको बताऊं, मतलब अराउंड मैं बोलूंगी 60+ मान के हाँ चलिए। हाँ हाँ हाँ। आप समझ ही रहे होंगे कि लाइफ किस स्टेज पे होती है, एक्सपीरियंस कंक्लूड हो चुके होते हैं। मतलब लिटरली अपने एक्सपीरियंस में ईयर से कर रही हूँ इस काम को, मुझे एक दिन बिल्कुल कंफर्मेटिवली ये चीज ड्राफ्ट करनी पड़ी कि मैं उनको ऐसे, जो जितने हमारे लाइफ के डायमेंशन है, कि उनको एक स्पिरिचुअल कोशेंट इंट्रोड्यूस कराना होता है, जो नहीं जानते, जो बिल्कुल ही मेटेरियलिस्टिक टच में रहे हमेशा, लाइफ मेटेरियलिस्टिक वे में दी के आए हैं। लेकिन प्योर बात ये भी निकल करके आती है कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म 60 इयर्स फुल आप गुजार आए हैं, तो जल्दी ये समझ ही नहीं आता, या समझ नहीं आता ज्यादा, इंटरेस्ट ही यस। कनेक्ट नहीं हो पाता है। मतलब मैं उन लोगों को जो आते हैं मेरे पास, वृद्ध लोग, उनको मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ कि अगर उनको कुछ बातें बता रही हूँ इससे रिलेटेड, और उससे वो जुड़ने की कोशिश करते हैं, या
उससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं, क्योंकि बकाया को तो समझ में ही नहीं आता। उनको लगता है कि वे और आउट, हमको इसी मेटेरियलिस्टिक वे में ही कुछ पीस मिल जाए, जो खुशी, जो कोर आप उसी से मिल जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। वो रिटायरमेंट लेने पा रहे हैं भाई, वो रिटायरमेंट लेके घर में बैठ के करूंगा क्या? दिस इज व्हाट यू आर ट्रेनिंग। तो तुम्हारा रिटायरमेंट होगा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या नाम है, मतलब बल्कि रादर यू विल बिकम इवन मोर बिजी आफ्टर द मटेरियल रिटायरमेंट, भाई एक तो एंड यू अभी विल बी ना मोर हैप्पी, यू विल बी तुम्हारी मैं बड़ा एक म- सिंपल हाँ। मैं बड़ा एक सिंपल जैसे इसीलिए ना मेरे को जो एक मैं शायद या तो आपसे वीडियो भी शेयर कर दूंगा, शीला प्रभुपाद का बड़ा सिंपल उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एवरी ह्यूमन बीइंग की है टू सर्व। हमें सर्विस, एक तो पहली बात कुछ चीजें बिल्कुल पक्की हैं, हमारा सोल जो है ऑलवेज एक्टिव है, हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं पूरे टाइम, और हम सर्वेंट हैं, सर्व करना ही है हमें। अब या तो आप लॉर्ड कृष्णा को सर्व कर लीजिए या फिर आप माया को सर्व कर लीजिए। और माया के ये सारे अलग अलग रूप हैं, प्रॉपर्टी, पैसा, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स भी। अगर आपने उसको कृष्णाइज नहीं करा तो फिर वो रिलेशनशिप भी माया के फॉर्म में। अच्छा, वो आप उसको देखें तो वो इतनी हार्श है माया, आप चाहे सब कर मरेंगे तब भी वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। वही अच्छा आप लॉर्ड कृष्णा को देखिए, आप पुष्पम फलम तोयम, अगर मतलब आप पुष्प फल पानी भी जल भी चढ़ा दें, लेकिन प्यार से, डिवोशन से, लव से वो उसी में खुश हुए पड़े हैं, वो उसी में खुश हुए पड़े हैं। इसीलिए मेरे को बड़ा सिंपल ये, अगर ऐसे तो आप क्या है ना, अगर आप अभी, अच्छा एक चीज और, जैसे मैं भी बड़ा, क्योंकि आई एम ऑल्सो फादर सो आई स्ट्रगल्ड विद दिस। फिर मुझे यही समझ में आया कि भाई मैंने शिला प्रभुपाद का आई शेयर विद यू ऑल्सो, कहते हैं ये हमारी एज ए पेरेंट्स एज ए ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बनाएं, लेकिन पहले अपने को कृष्णा कॉन्शियस बनाएं। बिल्कुल। हम जब बन जाएंगे तो वो अपने आप हमको देख के बनना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपने देखो, आपने उसके साथ बैठ के देखा वो वीडियो, जैसे मैं देखता हूँ बच्चे के। तो ये एक्चुअली, और ये बहुत ज्यादा जो पापा कह रहे हैं मौसी, ये बहुत बहुत बुरा टाइम एक्चुअली आ चुका है। और अब मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा ही बुरा टाइम आ रहा है, ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसे वो कहते नहीं है कि जैसे अब मतलब माया के धुंध में हैं आप, तो आप मतलब देखना ही नहीं चाहते। आप जो है कई, जैसे आपने ड्रग्स लेने चालू कर दिए हैं, जब दर्द होता है तो ड्रग्स लेने चालू कर दिए हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, दर्द हो रहा है बट आप उस समय ड्रग्स और ड्रग्स की कई शेप है, मतलब पिल्स ही नहीं, वीडियो देखना चालू कर दिया, मूवी देखनी सॉफ्ट चालू कर फॉर्म्स है, दी है, उसके सॉफ्ट फॉर्म्स हैं, कोई जरूरी नहीं है न्यूज देखना ड्रिंक्स ही है, चालू कर हार्ड दिया, ड्रिंक्स ही नहीं है, ड्रिंक्स जस्ट। हैं। तो लेकिन बहुत इंटेंस पेन हो रहा है, तो इसलिए बड़ी जरूरत है इस चीज की। तो आई वांटेड टू शेयर। जी। लेकिन ये दिस हैज बीन रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। आपका हाँ जो भाई, आपने बहुत ये जो है ग्रेट ना, चीज जो करी तुम अपने लोगों ने बच्चे क्या के नाम साथ है, शेयर मतलब करके, यू हैव ऑल्सो रियली बीन ग्रेट। ब्लेस्ड। और ये जो है ना, ये क्या नाम है, जो और एक और बात मेरे दिमाग में आई थी, बट क्या नाम है, यस जो है मतलब इट हैज बीन कंप्लीटली क्लैरिफाइड, कि बच्चे, फिर वो तो बच्चे वही सीखेंगे जो माँ बाप करेंगे। जब वो, बिल्कुल। देखो तुम्हारी माँ बाप, तुम्हारी मदर का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस तुम दोनों जने पे हुआ। हम्म। नहीं जीजा जी, शी हैज ये सच जीजा जी, प्रोफाउंड इम्पैक्ट। जीजा जी, मेरे फादर का भी हुआ है, बस वो साइलेंट थे। मतलब वो तो पेरेंट्स का तो इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, दोनों में। ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट टुडे यू हैव टॉक्ड अबाउट योर मदर, हर स्पिरिचुअलिटी, सो दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग हर, यू सी। जीजा जी मदर। अदरवाइज देखो तुम्हारे फादर को भी क्या नाम है, अब जहां तक मैं उनके बारे में जानता, ही वॉज ए ग्रेट मैथमेटिक्स के, वो जी बहुत जी। ग्रेट पर्सन थे। आईआईटी में बताइए, आज की डेट में वो जिस टाइम में आईआईटी में रिसर्च स्कॉलर बन गए थे, मतलब कि ही हैड अचीव्ड समथिंग विच इज अनथिंकेबल। वो तुम्हारे घर में किसको आइडिया ही नहीं था। जी 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 अदरवाइज उनको प्यार से करते तो वो मतलब क्या बन जाते हैं। और जो देखो ना, ही उन्होंने मतलब पंगा किसी ने लिया, मतलब वॉट एवर हैपेंड विद हिम इन आईआईटी, उन्होंने, बिकॉज उस समय वो चीज को वो कृष्णाइज मेरे ख्याल में नहीं कर पाए, दैट इज व्हाई ही बिकेम परटर्ब्ड, अदरवाइज ही नीड नॉट हैव बिकम परटर्ब्ड। अगर वो बिल्कुल। स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते और कृष्णाइज होते, तो फिर ही हाँ वुड हैव बिकम ए ग्रेट जी मैथमेटिशियन, जी। एंड ही वुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सुप्रीम लॉर्ड बिल्कुल। far more, far more.
far more. far more, you know. जी This is the beauty of being in Krishna consciousness. कि हम्म, तब माया का अटैक उनके ऊपर हुआ, वो नहीं संभाल पाए, वो नहीं सवाल बेचारे लौट के आए। और फिर आपके मतलब जो उनके बड़े भाई थे, जी उन्होंने भी मतलब मटेरियल सोल्यूशन निकाला कि भाई अच्छा तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो तो चलो हम्म, तुम क्या नाम है लॉयर बन जाओ। जी 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 अच्छा अब देखो क्या नाम है, वो एक माया के एक चंगुल से गुजर निकल के वो दूसरे माया के चंगुल में आ गए। जी दिस इज व्हाट इज दैट। अदरवाइज देखो ना, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिली उनको, सच ए हम्म, ब्लेस्ड पर्सन। और क्या हम्म, नाम है, ही अब मुझे नहीं पता, मतलब दिस इज हाउ आई फील बिकॉज आई बीन एलुमनस ऑफ आईआईटी कानपुर। हम्म, नहीं, उन्होंने एक बार बात बात में ये बात हमको बताई, और शायद वहीं से हम लोगों ने चीज मैंने लर्न की। मैं अपने बारे में बताऊं तो, कि ये जो कुछ भी हुआ ना रूपा, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि वो कह रहे थे कि हम लोग इतने पुअर फैमिली से थे कि अगर मैंने जो ये धुन पकड़ी थी ना पढ़ाई की, मतलब एकदम सुप्रीम अपने आप को निकालने, क्योंकि बैकग्राउंड तो था नहीं उनका। तो जिन्होंने रिसर्च स्कॉलरशिप का कंपटीशन जीत लिया था, इंडिया में 7th रैंक थी उनकी आईआईटी वाले में, तो वो कह रहे थे कि अगर ये चीज ना आती, ये जो दुख थे डिफरेंट टाइप के ना पड़ते, तो हमारा इधर की तरफ टर्न ना होता, आध्यात्म की तरफ। जब भी वो इंट्रोड्यूस हुए हमारे यहाँ अपने महाराज जी से, गुरु जी से, तो मतलब हमको भी दिल से ये बात अब आती है कि इतने बड़े बड़े दुखों में भी कहीं, अब मतलब टाइम लगा है, टुक 10-15 years, अब खुशी होती है कि वो पढ़ा। वो पिंचिंग इतनी श्रूड क्रूड थी कि इधर आंखें गई, मन की आंखें गई, ध्यान की आंखें गई, और फिर हम्म, अब ये रास्ता में रुचि आने लगी, प्यार आने लगी। और तो राधा जी से भी कई कई बार कहते हैं कि वाकई कितने हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग को ये सब बातें सुनने को मिलती, समझ। भगवान क्या है, भगवान सब कुछ डिटरमिन करते हैं, ये सर्व कारण कारणम है, इसलिए इसलिए हम्म, ही दैट इज व्हाट इज मेकिंग यू Grateful to हैप्पी। अब God. हम लोग आज यहाँ कंक्लूड करेंगे, मेरे को जब जी स्टार्ट करना है ना। जी। जी है जी ना, सॉरी सॉरी आई हैव टू नहीं इंटरप्ट नहीं दिस नहीं, बिल्कुल ब्यूटीफुल इट शुड बी डिस्कशन गोइंग ऑन है। फॉलोड दैट जी वे, हाँ। हम्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे Hare कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे, Hare Hare, हरे Hare राम Ram, राम Ram राम हरे Ram, हरे। Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Hare हरे Ram, राम Ram राम Ram, राम Hare हरे Hare, हरे। Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे Hare कृष्णा Krishna, Krishna कृष्णा हरे Krishna, हरे, Hare Hare, हरे Hare राम Ram, राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते।